Okay. So after completing first chapter, some basic concept of chemistry, we head to the exercise which in NCERT book. Okay. So first example, which is 1.2 and 1.3, you have to do it your own self. Okay. 1.1 is easy, even 1.2 also is easy. Okay. I think 1.3 is calculated by me in the lectures. Okay, which is you need to find empirical formula of and for you need to find empirical formula which is Fe2O3. Okay, now this one is a 1.4, in which calculate the amount of gas which is carbon dioxide when 1 mole of carbon burnt in air, 1 mole of carbon burnt in 16 gram of O2 and 2 moles of carbon burnt in 16 gram of O2. So first of all you need to decode this example. We can say that this one is a example of stoichiometry. Okay, if you know about stoichiometry you easily do this. Okay, so first of all you need to make an equation which is carbon. We take this carbon reacts with oxygen which is in gas form, as well as carbon is in solid form. Okay, which makes usually carbon dioxide gas. Okay, if we go further in this chapter in 11th standard, we also know that carbon monoxide is also burnt, but here we need to clear this only carbon dioxide is produced. Okay, now let's see the equation. Is it balanced or not? So we can say that yes, it is balanced. Okay, यहाँ पे balance हो गई है. Now first thing, 1 mole of carbon burnt in air, meaning this is 1, this one is 1, this one is 1. Okay, 1 1 1, these are stoichiometric coefficients. Okay, you already know about this. Now what this stoichiometric coefficient says, 1 mole of carbon burnt in 1 mole air. Okay, so we need to calculate the amount of gas. So by using balanced chemical equation, we can say that 1 mole of carbon which reacts with 1 mole of O2, which form 1 mole of carbon dioxide gas. So the answer of the first question is 1 mole of carbon dioxide gas, which produce when 1 mole of carbon is burnt in air. Okay, burning process is just like oxidation process, in which particular carbon is reacting with oxygen. Okay, now in this second, 1 mole of carbon burnt in 16 gram of O2. Now let's see here, 1 mole, and here the value of oxygen is in gram. So we need to write down in terms of mass or weight. Now 1 mole of carbon means 12 gram. Now 1 mole of O2 means O2, that is O2 molecule, not an atom. This one is an atom, but this one is a molecule. That means 16 into 2, 32. Here it is 32 gram of O2 gas, which produce now 32 and plus 2, what is 44 gram of CO2. If you
calculate the mass of carbon dioxide 1 mole, which is 12 plus 32, which is 44. Okay, you can say here plus also because of conservation of mass law application. Now 12 gram of carbon needs 32 gram of O2. Okay, but you are given here 1 mole carbon, which is 12 gram, but only 60 gram of O2, only 16 gram of O2. That means you are given 16 gram instead of 32 gram. That means in second, here in second question, this one is a O2 which is LR. यहाँ पे हमें कम दिया गया है, यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ O2 चाहिए 12 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए, लेकिन वी आर गिवन ओनली 16 ग्राम विच इज LR एंड ER प्रॉब्लम. दैट मीन्स ऑक्सीजन इज LR. सो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा रिएक्टेंट जो है वो डिसाइड करेगा, विच इज O2. सो लेट्स टेक 1 मोल ऑफ O2 makes 1 mole of CO2. 1 mole of O2 makes 1 mole of CO2. But we are given only 16 gram. 16 gram of O2. Let's 1 mole into 32 ग्राम. यहाँ पे हम क्या वेट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट का दिया गया है. 22 ग्राम मोल O2 makes 44 ग्राम ऑफ CO2. So 16 ग्राम ऑफ O2 makes how many ग्राम ऑफ CO2. ठीक है, then we convert into moles. Now 16 into 44 by 32. ओके, फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वैसा भी कर सकते हैं. क्या होगा, 2 4 4 4 4 4 कैंसल, 2 कैंसल, 22 ग्राम ऑफ CO2. ओके, 22 ग्राम ऑफ CO2. If we need to convert this in a mole, so moles is equal to given mass upon molecular mass. Given mass which is 22, molecular mass which is 44, which is 1/2, moles which is 0.5 moles. Okay, the answer is 0.5 moles. Okay, just clarify this one. Or 22 gram, both are same. Okay, clear? Now head to third one. Please make notes, take a screenshot of this. Okay, चलो आगे चलते हैं. ये तो क्लियर हो गया. Now third one is 2 moles of carbon. यहाँ पे 2 moles है in 16 ग्राम ऑफ O2. तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा. अब यहाँ पे 2 मोल्स जो है वो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं. 2 मोल्स मीनिंग 12 into 2, 24 ग्राम ऑफ कार्बन इज गिवन. 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम ऑफ O2. या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसको उल्टा सकते हैं. यहाँ पे 2 मोल्स दिए गए हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड हियर 16 ग्राम ऑफ O2. दैट मीन्स 1 मोल ऑफ O2 इज 32. सो यहाँ पे कितने मोल है, 0.5 मोल्स ऑफ O2 है. क्योंकि 16 है तो 32 का आधा हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे आप देखो 1 मोल को 1 मोल चाहिए, 1 मोल कार्बन को 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल कार्बन को कितने मोल्स ऑफ O2 चाहिए, 2 मोल्स ही चाहिए. दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो अगेन LR and ER प्रॉब्लम. दैट मीन्स हियर डाइऑक्सीजन इज
LR. Okay, so this one deciding this about carbon dioxide amount. Okay, so यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 mole of O2 produce 1 mole of CO2, but we have given 0.5 moles of O2, how many moles of CO2? That means 0.5 cross multiplication 0.5 into 1 on 1, that is 0.5 moles of CO2. The answer is 0.5 moles of CO2 produced in this third one. Okay, clear? Write down. Now this one is a 1.5 in which calculate the mass of sodium acetate which required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82 gram per mole. Okay, now this one is a molar, that means molarity. The molarity equation is molarity is equal to given number of moles of solute upon volume in liter. Volume of what? Solution. Now solution is 500 ml. Okay, molarity is we are given which is 0.375. We need to find given mass of CH3COO which is sodium acetate. Okay, so put the value in molarity equation, which is 0.375 is molarity. Moles we need to find. Place as usual volume, which is in 500 ml upon 1000. We need to convert this one. So now 0.375 moles 1000 upon 500, 0 cancel out. Let's take 10 here. Moles 0.375 upon 10, which is 0.0375 moles. Okay, 0.0375 moles. Okay, clear? If any problem you can find this one. Okay, now आगे चलते हैं. मोल्स मिल गए. मोल्स is equal to given mass upon molar mass. Given mass which is moles which is we already find 0.0375. Given mass we need to find molar mass is 82. 0.0375 into 82 is equal to given mass. Given mass is in grams. Okay, given mass in grams, which is around 15.3 gram. Okay, clear? Write down. Okay, now let's take another example. Which is now this one is a 1.6 in which calculate the concentration of HNO3 in moles per liter in a sample. मोल्स पर लीटर का मतलब क्या है? मोलारिटी का यूनिट हमने देखा था मोल्स पर लीटर और वी कैन से मोलर. तो हमें मोलारिटी फाइंड करनी है, इनडायरेक्टली बोला गया है. ठीक है, विच हैज डेंसिटी ऑफ 1.4.1 ग्राम पर ml, मास परसेंटेज ऑफ HNO3. अब दिस वन मास परसेंटेज इज 69%, वेट बाय वेट मास बाय मास परसेंटेज इज 69%. का मतलब है
69 ग्राम ऑफ HNO3 in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ओके, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ओके, क्लियर. इसमें कोई भी जात की दिक्कत हुई आपको समझने में कि क्या यहाँ पे हो रहा है क्या नहीं? ठीक है, चलो इतना तो क्लियर हो गया. 100 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन का मास है, 69 ग्राम उसमें HNO3 है. इसकी मोलरिटी हमें फाइंड करनी है, डेंसिटी हमें दी गई है सॉल्यूशन की. ओके, चलो अब ये तो हो जाएगा. मोलरिटी का इक्वेशन पहले डाल दो. मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन किसके मोल्स? HNO3 के मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड मोल्स. ओके, so moles is equal to given mass upon molar mass. given mass which is 69 हमें दिया गया है 69. HNO3 का मोलर मास कितना होगा? HNO3 which is hydrogen is 1, nitrogen is 14 and 16 into 3 48. 63 gram per mole. Now by 63, what are the moles? Moles is around 1.095 gram. 1.095 gram per moles. Now moles are find it now. 1.095 ग्राम तो यहाँ पे मिल गए, लेकिन वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का. But we have density and mass of the solution, so we can apply this one. Density is equal to given mass upon volume. वॉल्यूम हमें चाहिए तो वॉल्यूम को यहाँ पे लेके आओ, डेंसिटी को यहाँ पे लेके जाओ. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज हियर, गिवन मास विच इज 100 अपॉन डेंसिटी इज 1.41. वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आएगी? 70.92 समथिंग आएगी. 70.92 ml आएगी डेंसिटी. ठीक है, सॉरी वॉल्यूम. तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मिल गया, मोल्स भी मिल गए HNO3 के. तो मोल्स यहाँ पे लिख लो आप 1.095. 70.92 ml क्या है? सॉल्यूशन है, लेकिन हमें किसमें कन्वर्ट करना है? लीटर के अंदर. तो अपन 1000 डाल दो. 1.095 इंटू 100 बाय 70.92. द आंसर इज द मोल्स पर लीटर. द आंसर इज मोल्स पर लीटर और मोलर. ओके, विच इज अराउंड 15.44 m or moles per liter. This is the molarity question. ओके, जो उल्टा करके पूछा गया है हमको. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो और ये नोट्स बना लो. Now 1.7 in which we need to find copper obtained from 100 gram of CuSO4 which is copper sulfate. Okay, so first of all हमें मालूम है कि 1 mole CuSO4 gives 1 mole of copper. इजीली आप देख सकते हो 1 मोल कॉपर में 1 मोल कॉपर सल्फेट में 1 मोल कॉपर है, 1 मोल सल्फर है और 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो है 1 मोल का ग्राम, इसका मास कितना होगा? मोलर मास मतलब कि ग्राम में मास कितना होगा? 63.5 प्लस 32 प्लस 64. ओके, 63.5 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 159.5 ग्राम. 159.5 ग्राम पर मोल. ठीक है, ये जो है वो मास है. ठीक है, इन ग्राम, इसको ग्राम में भी लिख सकते हो, मोलर मास को ग्राम में लिख लो. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4
gives 63.5 ग्राम ऑफ CU। सर ये कहाँ से लिखा? अब 1 मोल में 1 मोल ही CU है तो 1 मोल का वेट कितना है? 159.5। तो 1 मोल CU का वेट कितना होगा? 63.5। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मोलर मास को आप ग्राम में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना है? 100 ग्राम है। बट 100 ग्राम ऑफ CuSO4 gives how many ग्राम ऑफ CU? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 100 इंटू 63.5 अपॉन 159.5। आंसर जो भी आएगा उतने ग्राम जो है उतना ग्राम CU होगा 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर, जो है 39.81 ग्राम, अराउंड 39.81 ग्राम ऑफ CU प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, क्लियर? चलो लिख लो, आगे चलते हैं। नाउ दिस इज अ 1.8 एग्जाम्पल। जो हमने 1.3 फाइंड किया था उसके अंदर हमें इम्पेरिकल फॉर्मूला मिला था Fe2O3, उससे रिलेटेड है। अब ये जो इम्पेरिकल फॉर्मूला हमें मिला था Fe2O3, उस कंपाउंड का ही मोलर मास हमें दिया गया है, ठीक है। तो हमें मोलेकुलर फॉर्मूला जो है वो फाइंड करना है। तो आपको मालूम है, हमने आगे देखा हुआ है, empirical formula into n is equal to molecular formula. This is the first equation, and empirical mass into n is equal to molecular mass. This one is the second equation. Okay, so we need to find empirical formula, that means empirical mass we need find करना पड़ेगा। Fe2O3 which is 56 into 2 plus 60 into 3 कितना हो जाएगा? 1112, और ये हो जाएगा 48 0 6 1, ठीक है, 160 ग्राम पर मोल। ओके ओके, चलो ये तो इम्पेरिकल मास मिला, हमें तो मोलेकुलर मास फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? अब इम्पेरिकल मास दिया गया है, मोलेकुलर मास दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 159.8 है, तो ये 160 ही होता है ग्राम पर मोल अराउंड, ठीक है। ये समझ लो आप, ये जो है वो 160 ही होता है, ठीक है। हम यहाँ पे 56 ले रहे हैं, इसीलिए 55 पॉइंट समथिंग 85 होता है, लेकिन हम राउंड ऑफ ही लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सा रखेंगे? इम्पेरिकल मास इज इक्वल टू इंटू n इज इक्वल टू मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास, यहाँ पे इम्पेरिकल मास हमने फाइंड किया 160 इंटू n इज इक्वल टू 160। इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको ऐसे ही रखो, इसको यहाँ पे लेके जाओ। 160 अपॉन 160 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मतलब कि n की वैल्यू मिल गई 1। तो n को इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन है इम्पेरिकल फार्मूला इंटू n इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, n इज इक्वल टू 1। इम्पेरिकल फार्मूला इज Fe2O3 विच इज Fe2O3। यही हमारा आंसर है, मोलिकुलर फार्मूला हमें मिल गया। ओके, इसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इजी है। ओके, आगे जो 1.3 हमने फाइंड किया था उसको थोड़ा आगे बताया हुआ है, लेकिन एक ही, अगर मेरी मानो तो एक ही सम के अंदर, एक ही एग्जाम्पल के अंदर ये सभी चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब 1.6 जो है ये परसेंटेज अबिडेंस फाइंड करना है, वो हमने आगे किया हुआ था, वैसे आपको करना है इक्वेशन डाल के, परसेंटेज इनटू मोलिकुलर मास वाला। ठीक है, प्लस परसेंटेज इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सेकंड एलिमेंट अपॉन 100, जो भी होगा वो आप डाल देना। ठीक है, ये इजी है। चलो अब 1.10 पे जाते हैं। C2H6 विच इज हम बोल सकते हैं ईथेन है। ठीक है, C2H6 हमें दिया गया है ईथेन, उसके अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथेन फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट
डालता हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या फाइंड करना है, कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स फाइंड करने हैं, किसमें वो देख लेते हैं, किसमें फाइंड करने हैं। 3 मोल के अंदर, 3 मोल्स ऑफ के अंदर 3 मोल्स ऑफ C2H6 दिया हो उसके अंदर। अब सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आप देखो 1 मोल ऑफ C2H6 के अंदर कितने कार्बन है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 मोल्स ऑफ C2H6, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 इंटू 2 6 मोल्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा था, क्लियर हो गया। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वही फाइंड करना है ना, हाइड्रोजन एटम्स 3 मोल्स के अंदर। तो सीधी सी बात है, 1 मोल ऑफ C2H6 के अंदर 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। 1 मोल C2H6 है, इथेन है, जिसके अंदर क्या है 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो 3 मोल्स ऑफ C2H6 के अंदर कितने होंगे, तो 3 इंटू 6 क्या हो जाएंगे, 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, H एटम्स, ओके 18 मोल्स ऑफ H एटम्स हो जाएंगे। ओके क्लियर, समझ में आया इतना। चलो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंटेन एवोगैड्रो नंबर वाला ना। अब 1 मोल C2H6 के अंदर 6.022 10⁻23 मोल्स है, या सॉरी एटम्स है या पार्टिकल्स है। तो 3 मोल्स के अंदर कितने होंगे, कंटेन 3 इंटू 6.022 10⁻23, अराउंड 18,066 होगा शायद, 18.066, हाँ 06 है ना, 18.06 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स बोल सकते हो दोनों, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो। चलो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये 1.6 नहीं 1.9 है, ठीक है, 1.6 लिख लिया। अब ये जो है 1.11 एक्सरसाइज है, ये जो है वो C12H22O11 शुगर है, जिसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है मोल्स पर लीटर में, या फिर हम बोल सकते हैं हमें मोलारिटी फाइंड करनी है। गिवन मास दिया गया है 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 2 लीटर का। तो मोलारिटी का इक्वेशन डाल दो सीधा, मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ शुगर अपन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का, तो लीटर में ही है, तो कुछ करना नहीं है। ml में होता तो बाई 1000 डालते थे। मोल्स जो है फाइंड करना है, गिवन मास है 20 ग्राम। C12H22 और O11 का मोलर मास कितना होगा, 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16, अराउंड 144 प्लस 22, और इसका क्या हो जाएगा 176, क्या होता है समथिंग, अराउंड 342 मोल्स होता है इसका टोटल। यहाँ पे लिख लेता हूँ 342 ग्राम पर मोल सीधे, क्योंकि अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। 342 जो है वो मोलर मास है, किसका है, शुगर का है। मोलर मास मिल गया है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स, तो 20 अपॉन 342 2 लीटर, अभी लिखना नहीं है, मोल्स पर लीटर वही आएगा। 20 अपॉन 342 2, ये अभी इसमें चला जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो कट आउट 10 अपॉन 342, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा अराउंड 0.0, सॉरी
ये नहीं आएगा, आएगा 10,342 है ना, 0.0293 मोल्स पर लीटर। एक बार चेक कर लेते हैं कैल्सी में, तो लोचा नहीं आए। 8342 बराबर है। चलो क्लियर, ये तो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ डिकोड करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो यहाँ पे इक्वेशन एग्जांपल नंबर 1.12 जिसके अंदर मीथेनॉल CH3OH जो है वो हमें दिया गया है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी दी गई है 0.793 kg per mole। What is its volume needed for making 2.4 liter of its 0.25 molar solution? कैपिटल M है, इसका मतलब क्या है कि मोलारिटी दी गई है। ठीक है, लेकिन ये तो अभी बनाना है, उसकी दी गई है। ठीक है, ml ही है क्या, देख लेते हैं। अभी 25 लीटर है ना, ml कहाँ लिख लिया मैंने। चलो ये चीज़ तो बाद में है, लेकिन हमें 0.793 kg पर लीटर वाली डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी का मतलब है कि पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितने ग्राम जो है वो प्रेजेंट होंगे वो है। अभी इसके 0.793 kg प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। तो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है, मोल्स प्रेजेंट इन अ लीटर। मोल्स प्रेजेंट इन अ लीटर मतलब कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, दैट मीन्स 1 मोल प्रेजेंट है किसके लीटर, इन 1 लीटर। अगर 2 मोलर है इसका मतलब है कि 2 मोल प्रेजेंट है इन 1 लीटर। ये चीज़ आगे मैंने बताई हुई है। तो यहाँ पे डेंसिटी देखो आप, डेंसिटी है kg पर लीटर की, मतलब कि मीथेनॉल की डेंसिटी है CH3OH की 0.793 kg पर लीटर। तो लीटर तो वैसे भी दिया हुआ है, मतलब कि इस kg को हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ग्राम के अंदर। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसको यहाँ पे ले जाओ या इसको यहाँ पे ले जाओ तो क्या हो जाए, 1 kg अपॉन 1000 ग्राम, या फिर 1000 ग्राम अपॉन 1 kg। किसको यूज़ करेंगे, kg कन्वर्ट करना है तो ये kg को कट करना है तो ये यूज़ करेंगे। 1 kg कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 793 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल इज 793 ग्राम ऑफ लीटर। मतलब कि 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम है, 793 ग्राम जो है वो मीथेनॉल है। तो मोल्स फाइंड कर सकते हैं हम, कैसे, सॉरी मोलारिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ग्राम कितने हैं, गिवन मास 793 ग्राम। लीटर तो 1 लीटर है ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये OH होगा, CH3OH का क्या होगा, 12 + 4 कहाँ से है, ये 3 और ये 4 + 16 क्या हो जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा 20 + 12 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे 32 डाल देते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो मोलर मास है ये। ओके क्लियर, समझ में आया। चलो इतना क्लियर हो गया। अब ये 1 निकाल ही लेते हैं, इसका ज़रूरत ही नहीं है। 79332 क्योंकि वो तो सेम ही है ना, 1 लीटर के अंदर ही है। चलो मोलारिटी क्या आ जाएगी, 793/32 करेंगे तो क्या आ जाएगी, अराउंड 24.78 आनी चाहिए। 793/32 24.78 4.78 नीचे 1 लीटर मतलब कि मोल पर लीटर। चलो ये तो मिल गया, मोलारिटी मिल गई कि ये चीज़ जो बताई थी उसकी मोलारिटी हमें मिल गई। ठीक है, लेकिन हमें ये बनाना है और हमें पूछा गया है कि वॉल्यूम पूछा गया है। देखो आप यहाँ पे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है कि
व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, नॉट ग्राम। ग्राम नहीं पूछा गया है, हमें वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन डालेंगे, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन वाला इक्वेशन डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये m1v1 इज इक्वल टू m2v2 आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। ये अभी एसिड बेस का टाइट्रेशन जब आप करोगे तब आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। ये फाइंड करना है, ये बनाना है। m2 मतलब क्या है, 0.25 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है। कितने लीटर का, 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। हमारे पास कितना है, हमारे पास ये इतना है 24.780 मोलर, इसको हम मोलर भी बोल सकते हैं, मोलर का है सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम हमें मालूम नहीं है तो सीधा डाल दो 24.78 इंटू V1 0.25 इंटू 2.5, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आओ, V1 इज इक्वल टू 0.25 25 24.78, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इस एग्जाम्पल का आंसर होगा। ओके क्लियर, कितना आया देखते हैं, कितना आएगा, तो आएगा अराउंड 5.22 ml, ठीक है। ये आंसर है इसका, अप्रॉक्स जो भी आएगा 25.22 ml आएगा। ओके क्लियर, समझ में आ गया। चलो तो फिर आगे चलते हैं। चलो दिस वन इज अ 1.13, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर जो है वो एक फोर्स है पर यूनिट एरिया। मतलब कि प्रेशर, मान लो कि हमने 9th में ही पढ़ा होगा कि प्रेशर जो है वो पर्टिकुलर जो भी एरिया होगा उसके पर यूनिट एरिया में लगता है, जो वेट लगता है, जो मास, जो वेट लगता है बोल सकते हैं, वही क्या है, प्रेशर है, जो 90 एंगल पे लगता है, ठीक है। कोई भी सरफेस के 90 एंगल पे लगेगा, ठीक है, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोला जाएगा, प्रेशर बोला जाएगा। अगर मान लो कि ये कोई सब्सटेंस है, इसको 90 डिग्री से हम यहाँ पे क्या देंगे, फोर्स देंगे, ठीक है, तो क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा बोल सकते हैं, वो यहाँ पे बोला गया है। और प्रेशर की यूनिट है पास्कल, जो ऐसा यूनिट है वो हमने आगे देखा हुआ है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया गया है। अगर कोई सी लेवल है जहाँ पे एयर का मास है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो डेफिनेशन में दिया गया है, प्रेशर इज द वेट एक्टिंग ऑन अ यूनिट, एक्टिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट। कोई यूनिट जो यहाँ पे दिया गया हो उस पर क्या करता है कि एक्ट करता है। प्रेशर मतलब वेट, वेट है, वेट, ठीक है। और वेट जो है उसका डेफिनेशन है m इंटू जी, मास विच इज 1034। जो एयर का मास है वो एयर का ही क्या लगेगा, एटमॉस्फेयर का ही क्या लगेगा, हम पे प्रेशर लगेगा। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर ही तो है, तो एयर का ही प्रेशर लगेगा। और एयर का प्रेशर कैसे लगेगा, उसका मास होगा वही लगेगा, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू 1034 कितना है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जी मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इतना वेट लगेगा सी लेवल के, सी लेवल जो यहाँ पे सी लेवल है वहाँ पे मास जो है वो एयर का इतना है, प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, ठीक है, वो इतना लगेगा। चलो अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे तो क्या दिया गया, ग्राम दिया गया है ना, और 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये कट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये और एक चीज़, 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये चीज़ आपको फिजिक्स में आएगी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो मान लो कि 1034 ग्राम सेंटीमीटर
स्क्वायर इंटू 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है कि ग्राम को कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो क्या तो इसको ले ले 1000 या 1000 ग्राम अपॉन 1 kg। मैं kg क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है ना, या इसीलिए, नहीं तो mg में भी ले सकते हैं। चलो यहाँ पे ग्राम को कन्वर्ट करना है तो 1 kg अपॉन 1000 ग्राम लेंगे तो ग्राम ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो मीटर है यहाँ पे, तो मीटर है तो मीटर वाला लेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी कट आउट करना है ना, हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है, ये लाना है पहले तो क्या करेंगे 1 मीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे मीटर कट आउट करना है ना, सॉरी सेंटीमीटर कट आउट करना है, यहाँ पे ये पहले कट आउट करना है। तो 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर। ठीक है, ये भी करेंगे तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर कट आउट हो जाएगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलो अभी क्या हो गया, अभी तो मीटर, ये मीटर मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, ये मीटर है ना, मीटर मीटर भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो केजी बचा, मीटर बचा, सेकंड स्क्वायर बचा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी पास्कल में ले जाना है। ठीक है, तो मैंने बोला 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज़ ले लो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, क्या होगा 1 न्यूटन अपॉन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर अपॉन 1 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यूज़ करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो kg कैंसिल करना है ना, ये kg भी कैंसिल करना है, न्यूटन में चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे लिख लेता हूं मैं, (1034) ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिया था, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देन 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, सेंटीमीटर कट आउट, सेंटीमीटर स्क्वायर कट आउट, बीच का भूल गया हम। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, कहाँ गया, 1000 ग्राम, सॉरी ग्राम वाला नहीं चाहिए, 1 kg वाला चाहिए ना, 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी kg को भी निकालना है, मीटर मीटर भी कैंसल आउट हो गया, kg को निकालना है तो ये डाल देंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर सेकंड माइनस 2, वही है, पर सेकंड स्क्वायर लिखो या वो लिखो, kg कहाँ गया, किधर गया, kg दिख नहीं रहा, हाँ ये kg बाजू में ही है। चलो ये क्लियर आउट हो गया, एक वो भी कट आउट हो गया, मीटर मीटर। चलो अब पास्कल को डाल दो, ये पास्कल वाला। अब ये पास्कल को कैसे लिख सकते हैं, 1 पास्कल अपॉन 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसा मैं लिखूँ 1 न्यूटन मीटर माइनस 2, या फिर 1 न्यूटन मीटर माइनस 2 अपॉन 1 पास्कल। ठीक है, तो यूज़ क्या करेंगे, पास्कल ऊपर चाहिए ना हमें, तो पास्कल वाला ऊपर डाल दो, न्यूटन मीटर माइनस 2। ठीक है, चलो अब देखो न्यूटन न्यूटन कैंसल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है, मीटर है, और यहाँ पे भी मीटर है, ये मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर माइनस 2, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। ठीक है, तो बचा क्या, बचा क्या,
हाँ सेकंड स्क्वायर बचा, लेकिन सेकंड यहाँ से कट आउट हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर सेकंड माइनस 2, तो पास्कल ही बचा। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको वैल्यू क्या आएगी, 1.013 इंटू 0.013 भी ले लेते हैं, 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपको। ओके, बहुत ही लंबा हो गया, सभी काटने थे और पास्कल को लाना था, इसलिए बहुत ही लंबा हो गया ये। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल दिखे हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें से पहले ही दिए गए हैं, जो नहीं दिए गए हैं वही करना है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए इतने ही एग्जाम्पल, आगे के एग्जाम्पल सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते रहो।